الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان ختم ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، آج مراد اس عرس مقدس کی بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء اہل سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر نقیب اہل سنت نفاذ قوم ملت حضرت علامہ ظفر الدین صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ محمد عارف صاحب قبلہ وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ منور حسین صاحب قبلہ وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ خطیب حرب العزیز خطیب اہل سنت حضرت علامہ عالمگیر صاحب قبلہ وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اور آج آپ کے دیار محبت میں استاذ الحفاظ حضرت حافظ وقاری محمد مجاہد صاحب قبلہ، جن کا نام بھی مجاہد ہے اور کام بھی مجاہد والا کیا کرتے ہیں، انہوں پرسا میں تھے تو پرسا میں بھی گلزار کیے تھے، نندور میں بھی ہیں، ایک دم سدا بہار کاری کا نام کاری مجاہد ہے الحمدللہ، جو ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ انہی کے معرفت عالی جناب مخیر قوم افتخار صاحب سابق پردھان لوہر سر، جن کی دعوت پر لبیک کہہ کر یہ فقیر آج بھی حاضر ہوا ہے، جبکہ میں آج کہیں اور بھی تھا۔ سرزمین اگیا کے بغل میں، اگیا شریف کے بغل میں سجیا ایک گاؤں ہے، وہاں میں جلدی تقریر کیا، لگ بھگ 40 منٹ یہاں کے لیے میں اتنی تیزی سے آیا ہوں نہیں جان رہا ہوں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی اس عرس مقدس کی محفل میں ضرور شرکت کروں گا، اور وقت سے آ بھی گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آنے میں بہت زیادہ وقت لگا ہے نا، ابھی میرا یہی وقت بھی تھا بولنے کا تو میں پہنچ بھی گیا۔ ممبر نور پر شہنشاہ ترنم استاذ الحفاظ قاری محمد اشرف قادری، حافظ محمد سہیل، حافظ نوشاد، حافظ شعیب اور دیگر لوگ ممبر نور پر طلبہ تشریف رکھتے ہیں۔ شہنشاہ ترنم روشن ویشالی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کی علماء کرام کی نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھ فقیر کی تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں۔ میں جب کل تقریر کر کے گیا نا تو آج تقریباً 8-9 لوگ مجھے فون کیے تھے کہ جب آج آپ بیان کرنا تو شادی میں جو غلط رسمیں ہیں اس پر تقریر کیجیے گا۔ تو میں جو لوگ فون کیے تھے اس بنیاد پر میں نے ایسی آیت کی تلاوت کی ہے کہ انشاءاللہ رب العزت اسی پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو بیٹھ رہیں گے نا تھوڑی دیر؟ ہاں تھوڑی دیر سنیں گے 10-15 منٹ؟ ہاں یار ہے کتنا دیر سنیں گے بھیا؟ ہاں کیونکہ میں مڈوبا کا ہوں تو سمجھ سکتے ہیں لوکل کا ہے کتنا سنائے گا، ہے نا؟ تو حضرات محترم آئیے کچھ عرض معروف سے بیشتر ہمارا اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین
शफीउल मुज़नबीन रसूल ग्रामी वकार हम गरीबों के गमगुसार अपनी सरकार दोनों आलम के मालिक और मुख्तार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राने अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हम रात एक अल्लाह के वली की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए आए हैं, जिनका नाम हजरत दल बहादुर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उसी मज़ार अक़दस में हमने हिंदुस्तान की दो अजीम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को भी देखा आराम करते हुए। एक अजीम शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा, माहिर उलूम व फ़ुनून, माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा तफसीरुल कादरी क़यामी साहब क़िबला दामत बरकातुहु रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका मज़ार अक़दस उसी मज़ार में बनाया गया है और उन्हीं के बगल में आपके इलाके की एक बावकार बाअज़मत शख्सियत, जिनको देखते थे तो पता चलता था कि ये कोई आशिक़ रसूल और खादिमे खानदान अहले बैत है। जानते हैं वो भी ज़ात आलिम नबी फाज़िल जलील उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की मज़ार अक़दस वहाँ बनी हुई है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात इस बाबरकत कुर्से मुक़द्दस के सदक़े तुफ़ैल में इनकी मज़ार अक़दस पर रहमत नूर की बारिश अता फरमा, इन पर अपना खास फज़ल फरमा, करम फरमा, उनके सदक़े तुफ़ैल में हम सब पर रहमत नूर की बारिश अता फरमा। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको ये पैगाम दूं, ये घबराए नहीं कि हम ही लोग सिर्फ बैठे हुए हैं। अच्छे लोग हमेशा कम होते हैं और कम की तादाद में होते हैं। आप तारीख का जायजा ले सकते हैं, करबला से लेकर आज तक, मैदान बद्र से लेकर आज तक। आप जब अच्छों की तादाद ढूंढेंगे तो आपको कम नजर आएंगे। आप अच्छों की तादाद ढूंढने के लिए 24 घंटे के अंदर जब अच्छों की तादाद ढूंढेंगे तो सीधा मस्जिद का रुख करेंगे, अल्लाह के घर का रुख करेंगे। आपको चाय की दुकानों पर सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वालों की तादाद आपको कम मिलेगी। तो आप घबराए नहीं, आप अच्छों में से हैं। अल्लाह आप पर रहमत और बरकत की बरसात अता करे। मैं रास्ते में आ रहा था, नंदूर से जब निकला ना तो मैंने देखा कि लगभग 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल वाले अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे। मैं कारी अशरफ कादरी से कह भी रहा था कि जानते हो, ये लोग जलसा सुनने के लिए नहीं गए थे, ये नबी के जिक्र में अपने आप में बैठने के लिए नहीं गए थे, अल्लाह के वली की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए नहीं गए थे। ये लोग गए थे तो मेले में मजा लेने के लिए गए थे। ये लोग गए थे तो हलवा पराठा और दीगर चीजों का मजा लेने के लिए गए थे। ये कौम आज मजा लेने में अपने वक्त को बर्बाद कर रही है, अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है। अभी भी नबी के मीलाद का प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल सजाई गई है। हमारी कौम के लोगों को अब भी शर्म नहीं आ रही है। अभी भी हमारी कौम के लोग इधर उधर टहलने में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। लेकिन बचे हुए मुसलमानों की आज कौम मुस्लिम को सताया जा रहा है, मुसलमानों की आबरू को लूटा जा रहा है। हमारी कौम कौन सुधरेगी जब इनको एकदम अपने आप में बदनाम कर दिया जाएगा, तब सुधरेगी। मुसलमानों, अभी वक्त है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम पर अमल करके, नबी आखिर ज़मां की शरीयत पर अमल करके, पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गादर में डालकर ऐसी बात में शामिल किया कर, इसलिए कि ऐसी महफिल में अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है और ऐसी महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा खुशनसीब होता है। बहुत खूब हक है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से मुक़द्दा, हज़रत कारी निसार अहमद साहब क़िबला, हक है। बहुत खूब। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि मुसलमान की जिंदगी के अरकान को किस तरीके से पूरा करना है। मुसलमानों के शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना हम सब की निगाहों के सामने जा रहा है। इसके बाद जो महीना आएगा वो रमजान का महीना होगा, वो बरकत और रहमत का महीना होगा। उस महीने में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा, उस महीने में अल्लाह की बरकत का नुज़ूल होगा। वो इतना बाबरकत व अज़मत महीना है कि रब्बे कायनात ने रमजान के महीने को अता किया ना, तो जो मेरे आका पैगंबर
पैगंबर इस्लाम का सदका है। हकीकत में नमाज मिली तो नबी के सदके है, रोजा मिला तो नबी के सदके है, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके है, कौनी वफेली इबादत मिली तो नबी के सदके है। यहाँ तक कि मुसलमानों अगर आज हम अपनी सांस को ले रहे हैं तो ये भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। रब्बे कायनात ने जो जान अता की है ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ला लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुजूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। वो रब तबारक व तआला आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मदद से पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया। अगर ए मूसा सुनो रब्बुस्मा आतीना के वकुन मिनश शाकिरीन वाला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा दिया है उस पर तू मेरा शुक्र अदा करे, मेरी तौहीद के साथ मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत कर रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। ये रब तबारक व तआला क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी होगी? मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करे उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करे उतना कम है। इसलिए कि रब कायनात ने हम गुनहगारों को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन व ज़मा को पैदा न करता, मैं मक्की व मक्का को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँद सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात व जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात व मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिका, हे महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद न होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान न करता। इस हदीस कुदसी पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जद्दुल इज्जत वाजिया बहाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते थे बरेली की मुकद्दस ज़मीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की, जान है वो जान। हक है नारे तकबीर, नारे रिसाला और से मुक़द्दस हक है बहुत हो। इस रिवायत से पता चला कि रब्बे कायनात ने आज दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमानों अगर नबी का सदका मान रहे हो ये जान नहीं हो कि अल्लाह ने नबी के सदके में दुनिया को वजूद में लाया है। अल्लाह ने नबी के सदके में हमें नमाज अता की है, अल्लाह ने नबी के सदके में हमें रोजा अता किया है। तो उस पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पर्दा कौन मुसलमान अपनी गर्दन में डालने के लिए तैयार ना होगा? मुसलमानों सिर्फ जबान से कह लेने से ये नहीं काम चलेगा कि हम गरीब नमाज के मानने वाले हैं, हम हुजूर बहादुर शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मखदूम पाक की चौखट को छोड़ने वाले हैं, हम आला हज़रत नसीबुल बरकत के मज़हब पर चलने वाले हैं। मुसलमानों सिर्फ शाम ज़बान से काम करने से, ज़बान से सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। हम जब औलियाए किराम के मिशन पर काम करेंगे तब हमें दुनिया कहेगी ये नबी का गुलाम है, तब हमें दुनिया कहेगी ये नबी का दीवाना है। मगर हालात का जायज़ा लो, अपनी समाज और मुआशरे का जायज़ा लो। आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरूह किया है। यही रमजान मुबारक का बाबरकत महीना हम सब की निगाहों के सामने आ रहा है। जिस रमजान के महीने में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा, जिस रमजान के महीने में अल्लाह की बरकत का नुज़ूल होगा। ऐ मुसलमानों वो रमजान का महीना जिसके बारे में जब अंबिया अलैहिस्सलाम को पता चला कि रब्बे कायनात उम्मत मुहम्मदिया को एक महीना ऐसा तोहफे में अता करेगा जिसके अल्लाह की बेशुमार रहमत का नुज़ूल होगा, तो बड़े बड़े अंबिया ने रब की बारगाह में दुआ किया था कि मौला हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा कर दे, हमें उम्मत मुहम्मदिया में अपने आप में हमें पैदा कर दे। ए मुसलमानों जिस उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने के लिए बड़े बड़े अंबिया ने दुआ की थी, रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर ihसान करते
ہو ہمیں رغبت محمدیہ میں پیدا کیا ہے جو رمضان جیسا بابرکت مہینہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے تو اس رمضان کا استقبال کرو مسلمانوں اس لیے کہ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حقیقت میں رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ میں رمضان کا استقبال کرتے تھے رمضان کی تیاری کرتے تھے اپنے بستر کو اپنے آپ میں بانٹ دیا کرتے تھے ان کو خبر تھی کہ اب جو مہینہ آ رہا ہے اس میں مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے اس مہینے میں زیادہ نماز کی ادائیگی کرنی ہے اس مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے حقیقت میں مسلمانوں صحابہ نے جس مشن کو عام کیا تھا اسی مشن کو ہم ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو مذہب اسلام کا ماننے والا مانتے ہیں اس کے بعد زندگی کے اندر چھانٹ کر دیکھو تو مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ خطائیں پائی جا رہی ہیں مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ گناہ پائے جا رہے ہیں اس لیے کہ اے مسلمانوں پہلے کہ اپنے آپ میں مسلمان رہتے تھے وہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے اگر رمضان کا روزہ کوئی اتفاق سے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رہتا تھا تو چائے کی دکانوں پر کھلا بیٹھ کر وہ ناشتہ یا کھانا نہیں کھایا کرتا تھا لیکن آج کے نوجوانوں آج کے مسلمانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو آج تو اتنی بے شرمی عام ہو چکی ہے کہ آج پردے کا بالکل انتظام نہیں ہے لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رمضان جیسے بابرکت مہینے کے بقاؤ کو مجروح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں تم خوش نصیب ہو اللہ نے تجھے رمضان کا تحفہ عطا دیا ہے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو کر رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر آپ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ رمضان کے روزوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تمہارے گھر میں کوئی بلا کوئی مصیبت ہوگی نا تو قرآن کی تلاوت کے صدقے رمضان کے روزوں کو صدقے رب کائنات تمہاری گھروں سے بلا کو دور کروا کر رحمت نور کی بارش حق ہے بہت ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ حق ہے بہت ہو حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے تو لوگ بے روزہ دار ہی وہ کان کھول کر سن لیں ابھی میں اپنے اصل موضوع پر بھی آؤں گا مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج قوم مسلم کی زندگی کس طریقے سے بربادی کے تہانے پر جا رہی ہے بس 2 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کے روزے رکھو مسلمانوں اس لیے کہ جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا بڑا عذاب نازل کرتا ہے آپ پوچھیں گے کیسے تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نوٹ کرو نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اپنے آپ میں ایک ایسی سنسان پہاڑیوں کی طرف سے مجھے فرشتے لے کر گزر رہے تھے کہ میں نے اپنے آپ میں اچانک زمین کے نیچے اندر دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ ان کے کلفڑوں کو پھاڑ کر انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے ان کے بے مسلمانوں ٹکڑوں کو پھوڑ دیا گیا ہے ان ٹکڑوں سے خون کے قطرات نکل رہے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طریقے سے سزا میں مبتلا کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ان پر عذاب کو نازل کیا جا رہا ہے جانتے ہو فرشتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کوئی اور نہیں ہے یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو رمضان کے روزے میں سحری تو کرتے تھے مگر دوپہر کا وقت آتے آتے یہ کسی نہ کسی بہانے کو بنا کر یہ رمضان کے روزے کو توڑ دیا کرتے تھے یا رسول اللہ رب کائنات نے اتنی بھیانک سزا میں انہیں مبتلا کیا ہے اے مسلمانوں آپ اندازہ لگائیں جو روزہ رکھ کر روزہ توڑ دے اللہ اسے اتنی بھیانک سزا میں مبتلا کرتا ہے جو سرے سے روزہ نہیں رکھتا ہے اللہ اسے کتنی بھیانک سزا میں مبتلا کرے گا اس طریقے سے اس پر عذاب نازل کرے گا آج تو حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں نماز نہ پڑھنے کے لیے ہماری قوم طرح طرح کے بہانے بناتی ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں اتفاق سے اگر کوئی مریض ہے نا اگر بستی یا شہر گورکھپور میں کسی ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی اگر تو فلاں نماز کی ادائیگی کرے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی تو ہماری قوم کے چہرے پر مایوسی آنے کے بعد وہ اپنے آپ میں کھل جایا کرتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی ہے اب ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر 10 لوگوں کو گمراہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے یعنی کہیں بھی بیٹھے گا نا کھاتا اور کھائے گا اور کہے گا میرے بھائی ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس بنیاد پر میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس لیے میں نماز کی ادائیگی نہیں کر پا رہا
हो मुसलमान अफसोस किया कर। तो हकीकत में इबादत की तौफीक अल्लाह उसी से छीनता है जिससे रब्बे कायनात नाराज हुआ करता है। जिससे अल्लाह राजी होता है ना उसे कभी सजदों की तौफीक को छीना नहीं करता है। अल्लाह जब राजी होता है तो याद रख मुसलमान तुझसे अपने आप में किस तेरी जब तुझसे राजी होता है तो अल्लाह रहमत का नुज़ूल करता है, तुझे सजदे की तौफीक देता है। और जब नाराज होता है तो तेरी दौलत में कमी नहीं लाता, तेरे औलाद में कमी नहीं लाता, तेरे घर में कोई परेशानी नहीं लाता, बल्कि जब रब जिससे नाराज होता है उससे सजदों की तौफीक छीन लिया करता है। मुसलमान अगर कोई डॉक्टर कहे कि तू अब नमाज पढ़ने के लायक नहीं है, तू रोजा रखने के लायक नहीं है, उस पर मुस्कुराया न कर, उस पर इतराया न कर, लोगों के सामने अपने आप में मुस्कुरा कर उसका जवाब न दिया कर, बल्कि मौला की बारगाह में आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर रोने की कोशिश किया कर। रब्बे कायनात मुझसे कौन सी खता हो गई है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है, रब्बे कायनात तू मुझे अपने आप में सजदे की तौफीक क्यों छीन रहा है। मुसलमानों जब रब की बारगाह में आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करेगा तो अल्लाह तेरे आंसुओं के सदके तुझेल में अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करेगा। मुसलमानों की तो इंसान की सोच है, मगर आओ सहाबा की जिंदगी देखो। आज के मुसलमानों की सोच को आपने देखा कि अगर कोई डॉक्टर मना की तो आजकल लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आओ सहाबा इकराम की जिंदगी की भी तारीफ उठाते हुए चलो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन इनकी आंख की बीनाई बड़ी तेजी से खत्म हो रही थी, आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अचानक एक हकीम के पास पहुंचते हैं, हकीम से दरियाफ्त करते हैं, हकीम मेरी आंखों की जांच कर ले, मेरी आंखों में दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बीनाई भी खत्म हो रही है, कोई जांच करके कोई दवा का इंतजाम कर दो। हकीकत में मुसलमानों हकीम ने जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आंखों की जांच किया है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आंखों को देखा है, हकीम ने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तुम्हारी आंखों का बड़ा सरल इलाज है, बड़ा अच्छा इलाज है, अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी आंखों का अच्छा इलाज हो सकता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा तब कौन सा इलाज है, मैं कराने के लिए तैयार हूँ। जानते हो मुसलमानों हकीम ने कहा था सुन तुझे 40 दिन तक पंजवक्ता नमाज को तर्क करना होगा, तेरी आंख की बीनाई लौट जाएगी, तेरी आंख का दर्द खत्म हो जाएगा। ये मुसलमानों अगर आज का कोई मुसलमान होता, कोई डॉक्टर कोई हकीम ये बात कह देता ना तो वो आकर 4 लोगों को और बताने पर आमादा होता, मगर वो सहाबी रसूल थे उन्हें पता था कि रब के पैगाम पर किस तरीके से अमल करना है, अल्लाह को किस तरीके से राजी करना है। हकीकत में मुसलमानों सहाबी रसूल अपने आप में उस हकीम से दरियाफ्त करके हकीम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपनी पूरी जिंदगी अंधा रहना गवारा कर सकता है, अपनी पूरी जिंदगी दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, मगर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की इश्क को ये गवारा नहीं है कि मैं एक वक्त की नमाज को तर्क करूं। ये मुसलमान वो सहाबे रसूल थे जिन्होंने नमाज को तर्क करना बेहतर नहीं समझा। हम और आपका अकीदा भी नहीं होना चाहिए कि हमारी कितनी भी बीमारी हो हम नमाजों की अदायगी करें, हम कुरान की तिलावत करें, हम रमजान के रोजों को रखें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब इन तमाम चीजों पर हमारा अमल होगा ना तो हमारे घर में जो भी परेशानी होगी अल्लाह इबादत के सदके कबूल में हमारे घरों से परेशानियों को दूर करवा कर रहमत नूर की बारिश आता। तो घबरा रहे हैं अभी, घबरा रहे हैं? हाँ यार अगर अच्छा ना लग रहा हो तो मैं बैठ जाऊं, ये उठक बैठक वाला मसला मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले ही कल बताया था कि अगरचे मैं 28 साल का हूं लेकिन मैंने भारत का कोई कोना छोड़ा नहीं है इस उम्र में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। मेरे माँ बाप और मेरे असातिज़ा बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम हुजूर मुबल्लिग साउथ अफ्रीका अबू सुन्नियत खलीफे हुजूर ताज शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम साहब किल्ला का बहुत खास चेला हूँ। ये याद रखिएगा उनकी इतनी खिदमत किया हूँ कि अल्लाह ने ये मकाम ये इज्जत मुझे उनकी खिदमत और माँ बाप की खिदमत की बदौलत अता किया है और मैं मोहताज नहीं हूँ किसी चीज का अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी कह रहा हूँ ना कि मैं अगया के बगल में जलसे से बोल कर आ रहा हूँ, ठीक है? तो अगर सुनना हो तो सुनिए और नहीं तो जिसको भी जाना यार जा सकता है। तकरीर के दौरान पढ़ते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ, इतनी मेहनत से सफर करके आदमी आए बोले सुनाए और आप वो उठते जा रहे हो उठते जा रहे हो उठते जा रहे हो। इतना भी सेंस नहीं है कि यार आदमी इतनी मेहनत करके आया है तो थोड़ी देर बैठकर हम उसकी गुफ्तगू को समाप्त कर लें।
है ना। तो हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि हम और आप को चाहिए कि हम और आप अल्लाह की इबादत करें, हम और आप कुरान की तिलावत करें, हम और आपको चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों, इन औलिया इकराम के मज़ार अक़दस को देख रहे हो ना, ये हज़रत अल बहादुर शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है। हमारे शहर अमरडोबा के अंदर एक मज़ार हज़रत बाबा रोशन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है। उसी मज़ार के बगल में मैं उसी मदरसे का मुदर्रिस भी हूँ, उस मदरसे को हम लोग देखभाल भी करते हैं। मस्जिद रोशन शाह के अंदर दारुल अहले सुन्नत कुतुबिया रोशनी उलूम का क़याम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब जो उनसे रोशन बाबा में गए थे, उन्होंने अपनी निगाहों से देखा था कि वहाँ के फारिगीन तलबा 12 की तादाद में थे, जिनके सरों पर दस्तारबंदी का ताज भी रखा गया था। और जानते हो मुसलमानों, हिंदुस्तान के किसी भी खानका का जायजा लो, हर मज़ार के बगल में अल्लाह के घर की तामीर हो। किसी भी मज़ार पर आप चले जाएं, मखदूम अशरफ सिमनानी के मज़ार पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे ऊपर भी मज़ार नीचे भी मज़ार। आप बरेली शरीफ की जमीन पर जाएंगे, आला हज़रत नजीबुल बरकत के बगल में मज़ार। आप बहराइच शरीफ की जमीन पर जाएंगे, सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार के बगल में मस्जिद का क़याम। आप देवा शरीफ जाएंगे, वारिस देवा के मज़ार के बगल में मस्जिद का क़याम। मसरूई शरीफ जाएंगे, आप देखेंगे कि मज़ार अक़दस के बगल में मस्जिद का क़याम। और आप जानते हो इस महफिल पाक के रूह रवा पीर तरीक़त हिजर राही शरीफ औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज अशा सज्जद अब्दुल रब उर्फ चाँद बाबू दामद बरकातुल कुदसिया, जिनका ए मुसलमानों मस्कन पिलहरी शरीफ है, वहाँ की खानकाह पर जाइए, खानकाह के बगल में मस्जिद का क़याम। यानी हिंदुस्तान के जिस भी खानकाह पर आप जाएंगे, हर खानकाह के बगल में अल्लाह के घर की तामीर है। अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर जाएंगे, मज़ार अक़दस के ठीक सामने मस्जिद का क़याम है। मुसलमानों, इन मस्जिदों को भी बनाया गया है। इन औलिया इकराम के मज़ार अक़दस के बगल में मस्जिदों का क़याम क्यों है? उसकी वजह कभी जानने की कोशिश किए थे? उसकी वजह ये है कि कौम मुस्लिम को पैगाम दिया गया कि मुसलमान थे, ये औलिया इकराम जो भारत की ज़मीन पर दीन की तबलीग के लिए आए थे, उन्होंने सबसे पहले नमाज के पैगाम को आम किया था, सबसे पहले कुरान की तालीम को आम किया था, उन्होंने शरीयत मुस्तफा के अहकाम को आम किया था। तो तुम्हारी सन्नत ये है कि जब मज़ारों पर हाज़िरी दो, पहले रब की बारगाह में सजदा करके फिर उनकी बारगाह में हाज़िरी दो। जो भी मुराद होगी रब तबारक व तआला तुम्हारे सजदों के सदके, औलिया इकराम की हाज़िरी के सदके तुम्हारी मुरादों को पूरी फरमा कर तुम पर रहमत नूर की बारिश अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हक है बहुत हो। जी, तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि जो लोग फोन किए थे कहते कि शादी की गलत रस्मों पर बयान कीजिएगा, अभी मैं बोला ही नहीं, ठीक है? अब बोलूंगा, ठीक? सुनेंगे ना? हाँ, क्योंकि माहौल बड़ा गंदा हो रहा है। हाँ, तो उससे पहले मैं 2-3 शेर मनकबत पढ़ दूं, है ना? फिर मालूम 1 साल के बाद मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी, है? हाँ, क्योंकि कल के बाद फिर परसों से हमें भी 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा जलसे का, ठीक है? हाँ, तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह। सुनेंगे ना भैया? कल थे आप लोग? हाँ, तो कल मैं कोई और नात पढ़ा था, आज मनकबत पढ़ूंगा, ठीक है? सुनेंगे ना? क्योंकि मुझे वो आपको बर्दाश्त करना है, ठीक है? अब कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह। बोल तो यार। हाँ, अभी एमपी का चुनाव आ रहा ना, कोई छोटा मोटा नेता आएगा चिल्लाएगा तो फौरन हमारी कौम चमचागिरी में सारी हदें पार कर देगी, है ना? हाँ, लेकिन उलमा की इज्जत के लिए हमारी कौम तैयार नहीं है ना? जी हाँ, मैं यार निसार अहमद निजामी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ना किसी नेता किसी सेठ की चापलूसी की ही नहीं है। आप मेरी पूरी जिंदगी उठा कर देखें, एक मजदूर का बेटा होकर आज पूरे भारत में लोग मुझे इज्जत देते हैं, यही मेरे लिए कम नहीं है ना? हाँ, तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह। हाँ, पढ़ दूं? सुनेंगे? हाँ, तो कहे सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। बहुत खूब, हक है, बहुत अच्छा लगा। है मचल कर सुभान अल्लाह।
نانا بلند اور نواسا بلند ہے، 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 اللہ کے حبیب کا تمبا بلند ہے، اللہ کے حبیب کا تمبا بلند ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے تو نانا ہے مصطفیٰ، ماں فاطمہ زہرا ہے تو نانا ہے مصطفیٰ، ماں فاطمہ زہرا ہے تو نانا ہے مصطفیٰ، حسنین کریمین کا رشتہ بلند ہے، نانا بلند اور نواسا بلند ہے، اللہ کے حبیب کا تمبا بلند ہے۔ بہت خوب، حق ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں تو کہیں بچل کر سبحان اللہ۔ یار میں صرف جب نعت پڑھتا ہوں نا تبھی کہتا ہوں سبحان اللہ کو، اور جب تقریر کرتا ہوں تو کبھی کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں، ہاں کیونکہ آپ کے ذہن حاضر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہیں سبحان اللہ۔ دل سے رسول پاک کی چاہت نہ جائے گی، دل سے رسول پاک کی چاہت نہ جائے گی، یہ جان چلی جائے محبت نہ جائے گی، دل سے رسول پاک کی چاہت نہ جائے گی، یہ جان چلی جائے محبت نہ جائے گی، بولے حسین میں نہیں جنت میں جاؤں گا، بولے حسین میں نہیں جنت میں جاؤں گا، جب تک کہ نانا جان کی امت نہ جائے گی، نانا بلند اور نواسا بلند ہے، اللہ کے حبیب کا تمبا بلند ہے، بہت خوب، حق ہے، بہت عمدہ، لائق تعریف۔ ہاں تو کہیں بچل کر سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے نعت نہیں پڑھ پاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں نا، ہاں ٹھیک ہے، کہیں سبحان اللہ۔ گورے حسین کے نکالے حسین کے، گورے حسین کے نکالے حسین کے، ہر رنگ کے ہیں جان والے حسین کے، گورے حسین کے نکالے حسین کے، ہر رنگ کے ہیں جان والے حسین کے، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی، جب تک رہیں گے ماننے والے حسین کے، نانا بلند اور نواسا بلند ہے، اللہ کے حبیب کا تمبا بلند ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے تو نانا ہے مصطفیٰ، حسنین کریمین کا رشتہ بلند ہے، بہت خوب، حق ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں گے نا بھیا؟ ہاں کتنا منٹ؟ 10 منٹ؟ اچھا